Today we'll start with the most important chapter of plus one, that is kingdom plantae, और we call it a plant kingdom. तो सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन का पार्ट करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. इन क्लासिफिकेशन we divide it into two. One is algae. Algae, these are the plants without embryo, and second is embryophyta. Embryophyta. First is algae, that is a plant without embryo. वो प्लांट जिनमें एम्ब्रियो नहीं बनता, और वो प्लांट विद जिनमें एम्ब्रियो बनता है विद एम्ब्रियो. The embryophyta are further categorized into two on the basis of vascular tissue. Vascular tissue absent. Vascular tissue absent and vascular tissue present. Vascular tissue present. When the vascular tissue is absent, they are known as bryophyta. They have a group bryophyta, and they are also known as atracheophyta. Trachea is the vascular. Atracheophyta. And the vascular tissue present, they are tracheophyta. Tracheal system is present. So once again, kingdom plantae has been divided into two groups, that is algae without embryo and embryophyta with embryo. Embryophyta further into two, atracheophyta and tracheophyta. Atracheophyta has example, that is bryophyta. Bryophyta. Phyta is a plant, bryo is moss, तो इनको बोला जाता है moss plant. Phyta is plant. Then tracheophyta are further divided into two on the basis of whether they have a seed or not. So seed is absent. सीड इज एब्सेंट. देखिए यहाँ एब्सेंट है, विदाउट एम्ब्रियो इज एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट है, फिर एडवांस लेवल पे प्रेजेंट है. तो सीड इज एब्सेंट, सीड इज प्रेजेंट. तो एक बॉटनी में टर्म आती है स्पर्म. स्पर्म इन बॉटनी, स्पर्म रेफर्स टू, स्पर्म को बोला जाता है सीड. सो सीड एब्सेंट मीन्स दे आर pteridophyta. They are pteridophyta. Pteridophyta. Ptera. Ptera is a wing or feather. Wing or feather. Wing or feather. Phyta is plant. And they are known as spermatophyta. Spermatophyta. Sperm. Sperm is seed. Phyta is a plant. So spermatophyta, again they are divided into two, that is seed naked है और seed included in fruit. and seed in fruit.
seed in fruit. So this naked seed, here we have a gymnosperm. And here we have a angiosperm. Look at this. We have a plantae kingdom divided into two. One is algae without embryo, and second is embryophyta. Embryophyta further atracheophyta, tracheophyta, then pteridophyta, spermatophyta, gymnosperm, and angiosperm. So this is the first part of classification of plant. Now we are moving to एल्गी. अब हम एल्गी की बात करेंगे. एल्गी ये लैटिन वर्ड था एल्गा, जिसका मीनिंग था सीवीड. So algae, Linnaeus coined the term algae. There are nearly 30,000 species of algae. Algae, the study of algae is known as phycology. Study of algae. Phyco refers to algae, and logos is study. Algae are found in, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? Found in fresh water. Fresh water होता है other than salt water. Then brackish. ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश होता है लेस सॉल्टी. एंड मेरीन वाटर, मेरीन वाटर इज द सॉल्टी वाटर. देयर हैबिटेट इज फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मेरीन. दे आर आल्सो प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग्स. हॉट स्प्रिंग्स में जब ये रहती हैं तो इनको बोला जाता है थर्मल एल्गी. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्नो. स्नो एक वर्ड मीनिंग आएगा क्रायो. क्रायो इज स्नो. क्रायोफाइट्स, क्रायो होता है स्नो. व्हेन दे आर इन स्नो दे आर नोन एज क्रायोफाइट्स. सम आर एसोसिएटेड विद फंजाई, to form lichens, which we have done. So this is a first part about algae. कि एक लैटिन टर्म थी एल्गा, दैट मीन्स सीवीड. स्टडी ऑफ एल्गी इज नॉन ए फाइकोलॉजी. फाइको इज एल्गी, माइको इज फंजाई.
Linnaeus coined the term algae. There are 30,000 species of algae found in freshwater, brackish water, and marine water. They are also present in hot springs where they are known as thermal algae. They are also present in snow areas. Snow is cryo, and they are also shaded as a symbiont, that is in case of lichens. These algae are surrounded by mucilaginous layer. Surrounded by mucilaginous layer. Mucilaginous layer which protect them from desiccation. Protect them from desiccation. And the जो एल्गी हैं देयर बॉडीज स्ट्रक्चर देखा जाए तो देयर बॉडीज थैलोइड. थैलोइड बॉडी ऑफ एल्गी इज थैलोइड. थैलोइड थैलोइड होता है. थैलस थैलस एक टर्म है. थैलस मीन्स दैट इज अ बॉडी विदाउट रूट स्टेम एंड लीफ. Without root, stem and leaves is a thyroid. So tissue system is absent in algae. No tissue system. We are talking about the algae. The cell wall of algae is made up of cellulose, mainly it has cellulose and pectin. Others are galactan and mannans. We are doing them later on. So this is about the cell wall, and nutritionally they are autotrophic in nature, because they have chloroplast in their chlorophyll. This is a brief about the algae. What are algae? Now we are doing the reproduction in algae. Reproduction in algae. There are three types of reproduction, like fungi: vegetative, asexual reproduction, and sexual reproduction. There are three types of reproduction. First is vegetative reproduction, that is we have binary fission and fragmentation.
fragmentation. Then asexual reproduction, we have a zoospore, a planospore, hypnospore, akinete. The hypnospore and akinete, they are formed during unfavorable condition. So they perform one more function, that is perination. पेरिनेशन एक ऐसा मेथड है जो किसी चीज से बचाता मीन्स हिप्नोस्पोर ये नए भी बनाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में बचाते भी हैं. तो जूस्पोर, प्लेनोस्पोर, प्लेनो होता है मोटाइल, ए प्लेनो इज नॉन मोटाइल. एंड asexual, this sexual reproduction is by means of isogamy and oogamy. This is about the reproduction in algae. तीन टाइप की रिप्रोडक्शन बताई. वन इज वेजिटेटिव, then is asexual, then is sexual. So coming to vegetative reproduction, binary fission, all of you are knowing the cell is divided into two parts. A cell is divided into two parts. This is binary fission. This is a feature of unicellular algae में binary fission होती है. Then is fragmentation. That filament break down into small pieces. A filament break down into small segment or fragment, and that fragment will form a new filament. So it is ये मैंने स्पाइरोगेरा का बनाया. Pyrogera is a filamentous algae. So example is filamentous algae. This I told you about the vegetative के बारे में. अब vegetative के बाद second part is asexual reproduction. That is I told you zoospore, a planospore, hypnospore and akinete. The thick walled a planospore, thick walled spores like a hypnospore. Hypnospore and akinete, whereas zoospores they have they are motile as we have discussed earlier.
now we are doing the sexual reproduction. As I have told you, sexual reproduction is by means of isogamy, anisogamy, and oogamy. Other feature in sexual reproduction are they are very important, that the sex organ of algae, sex organs are unicellular and non-jacketed और वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड. ये आपको डिफर करेगा ब्रायोफाइट से. ब्रायोफाइट में जैकेटेड सेक्स ऑर्गन अपीयर्ड होंगे और एडवांस फीचर है एल्गी से. जब हम ब्रायोफाइट करेंगे तो वहां ये पार्ट आएगा हमारे. यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड. बट एक एक्सेप्शन है, एक ग्रीन एल्गी में एक्सेप्शन के क्वेश्चन के बारे पूछे जाते हैं. एक्सेप्शन कारा एक ग्रीन एल्गी है, वहां यूनिसेलुलर की जगह सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड. ये एक्सेप्शन है, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड multicellular and jacketed. Multicellular and jacketed. I'll let you know what is this jacket. That is, it is like this के ये मैं बताता हूँ. This is the, ये ब्रायोफाइट का है. डोंट कंसिडर इट कि ये कहीं एल्गी का है. तो ये सेक्स ऑर्गन है, तो इसके बाहर ऐसे ये प्रोटेक्शन के लिए एक जैकेट होती है, इसलिए इसको जैकेटेड सेक्स ऑर्गन बोला जाता है. बट दिस इज इन केस ऑफ ब्रायोफाइट. ये मैं आपको एग्जांपल के लिए, कंपैरेटिव एस्पेक्ट के लिए बता रहा हूं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो यहां मेल सेक्स ऑर्गन कारा में ग्लोब्यूल बोलते हैं और फीमेल को न्यूक्यूल बोलते हैं. एनीवे, प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी. अब जो मेन प्लांट बॉडी है एल्गी की, यहां देखिए, ये सपोज हमारे पास एक एल्गी है. एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज हैप्लॉइड, एन है. And sexual reproduction takes place through zygotic meiosis. So their life cycle is haplontic. देखिए, ये 3 टाइप के लाइफ साइकिल होते हैं, इनकी डिटेल बाद में की जाएगी. पर आप यहाँ देखिए कि ये हैप्लॉइड है, तो ये हैप्लॉइड अपने गैमीट बनाएगा. these गैमीट फ्यूज कर जाएंगे. ये गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनाएंगे. जाइगोट इज 2n. अब जाइगोट दोबारा एल्गी नहीं बना सकता. क्यों? क्योंकि जाइगोट 2n है और एल्गी n है. तो इस जाइगोट में क्या होगा? मियोसिस होगी. मियोसिस होगी तो इसके हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे. These haploid spore then form the haploid body. So such type of life cycle are known as haplontic type of life cycle. Haplontic type of life cycle. And such type of meiosis known as zygotic meiosis. Zygotic meiosis. क्योंकि meiosis हमेशा diploid में होती है. Zygotic meiosis and haplontic type of life cycle. पर एक यहाँ एक्सेप्शन है एल्गी में, ब्राउन एल्गी में. ब्राउन एल्गी में डिप्लोएप्लॉन्टिक है. डिप्लोएप्लॉन्टिक मीन्स उसमें जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज डिप्लॉयड. यहां देखिए, हम इसको कंपेयर करते हैं
ब्राउन एल्गी से। ये ऊपर वाली तो ये थी हैप्लॉन्टिक टाइप। अब हम करते हैं कि ये प्लांट बॉडी है, ये 2n है प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी इज 2n, ये एल्गी 2n है। इसमें क्या हुआ, मेयोसिस हुई, मेयोसिस हुई, मेयोसिस हुई तो ये स्पोर बने, मेयोसिस हुई तो गैमीट बने, तो इसको गैमीटिक मेयोसिस भी कहते हैं। गैमीटिक मेयोसिस, गैमीटिक मेयोसिस किस में होती है, ब्राउन एल्गी में। दिस टेक्स प्लेस इन ब्राउन एल्गी। दिस इज ये हैप्लॉइड स्पोर बने, ये हैप्लॉइड अब आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट, ये जाइगोट बनेगा दैट इज 2n, और ये जाइगोट में माइटोसिस होगी और ये 2n ये स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ऐसे लाइफ साइकिल को क्या कहेंगे, ये ऊपर वाले को हैप्लॉन्टिक कहते थे, इसको कहेंगे डिप्लॉयड भी है और हैप्लॉयड भी है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड। तो इसको कहेंगे डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक। ये था हैप्लॉन्टिक और ये डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक और डिप्लो हैप्लॉन्टिक। सो दिस इज ये आपको एल्गी के बारे में मैंने बताया कि पहले क्लासिफिकेशन के बारे में, कि क्लासिफिकेशन आपने बहुत अच्छी तरह करना है। व्हाट इज देयर इन क्लासिफिकेशन, यहाँ देखिए मैंने बताया कि प्लांटी को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। वन इज एक एल्गी और एक एम्ब्रियोफाइटा। देन एम्ब्रियोफाइटा दो पार्ट में डिवाइड होगा, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। वेस्कुलर टिश्यू को ट्रेकियल बोला जाता है, इसलिए ए ट्रेकियोफाइटा एंड ट्रेकियोफाइटा। देन ट्रेकियोफाइटा में सीड एब्सेंट और सीड प्रेजेंट। सीड एब्सेंट है तो ट्रेडोफाइटा। टेरा, टेरा का मीनिंग होता है विंग और फेदर, वर्ड मीनिंग बहुत अच्छी तरह करने हैं आपने। स्पर्मेटोफाइटा, सीड नेकेड और सीड इज इन फ्रूट। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनकी फर्दर भी टाइप्स होती हैं, बट अभी आपने यहाँ तक ही इसको रिटेन करना है। देन वी हैव एल्गी। एल्गी में एल्गी लैटिन वर्ड है एल्गा, सीवीड, फाइकोलॉजी बोलते हैं। लीनियस कॉइंड द टर्म एल्गी। 30,000 स्पीसीज है एल्गी की, फाउंड इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मैरीन वाटर। मैरीन वाटर, सॉल्टी वाटर, अदर देन सॉल्ट वाटर इज अ फ्रेश वाटर। हॉट स्प्रिंग्स वाली एल्गी को थर्मल एल्गी कहते हैं। स्नो में जो रहती हैं एल्गी उनको क्रायोफाइट कहते हैं। दे आर आल्सो पार्ट ऑफ लाइचन्स। दे आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजनस लेयर जो इसको प्रोटेक्ट करती है डेसिकेशन से। बॉडी ऑफ एल्गी इज थैलोइड। थैलोइड मीन्स इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं है, इसलिए पहले इनको थैलोफाइटा में भी रखा गया। देन नो टिश्यू सिस्टम। देन cell wall made up of cellulose, pectin, galactans and mannans. Then we have autotrophic is a photosynthetic, hence they are autotrophic. Then reproduction in algae, तीन टाइप की रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, बाइनरी फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर, प्लेनोस्पोर। प्लेनो होता है मोटाइल, ए प्लेनो इज नॉन मोटाइल। हिप्नोस्पोर, एकाइनिट, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ooगैमी। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने बताया, बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, यूनिसेलुलर एल्गी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, छोटा सा पार्ट है, कंपटीशन में पूछा जाता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम कंपेयर करते हैं, जब ब्रायोफाइट्स थे तो वहाँ जैकेटेड आया था, या यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज कारा ग्रीन एल्गी है ये। तो ये दो टाइप के फिर लाइफ साइकिल है यहाँ, एक हैप्लॉन्टिक एंड एक डिप्लो हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक ऑल द एल्गी, और यहाँ ये मेन एल्गी, मेन जो प्लांट बॉडी है दैट इज हैप्लॉइड, और ब्राउन एल्गी में मेन प्लांट बॉडी इज द
diploid. So this type of algae we have done, so revise it thoroughly.